हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं। ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ फिजिक्स। सो ये टॉपिक लाइक दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। सो व्हाट कम्स फर्स्ट टू आवर माइंड एंड हाउ टू डिफाइन फिजिक्स। सो डेफिनेशंस की बात करते हैं, हम फिजिक्स के डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशंस की बात करते हैं डेफिनेशंस की बात करते हैं फिजिक्स की। देयर आर वेरी सिंपल, लाइक किसी के भी दिमाग में ये बात आएगी कि स्टडी ऑफ, लाइक फर्स्ट ओपिनियन ये है, लाइक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना, दिस इज व्हाट comes to your mind in the very first natural. This is what people think, this is what physics is. I hope you believe it. Yes or no? Yes or no? If your answer is yes, then I'll have another question for you. And if your answer is no, then what is your definition? Right. So let's, in any situation, I have my own way of saying this, like I have my own way of defining this definition of physics. तो जरा फिजिक्स के डेफिनेशन की बात मेरे नज़रिए से क्या है, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू सी, पहले मैं इस डेफिनेशन को, जो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन है, I believe this is not accurate definition for physics. Why? So, look, I would give you one example. There is a container, and this container has some water. इसमें water रख दिया हमने, इसमें water रख दिया. And then this is water actually. This is water. और अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन का जूस मिला देते हैं, लेमन जूस डाल देते हैं. What we place is lemon juice. Lemon juice. Lemon juice. So थोड़ी देर बाद में एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. One solution will be ready, right? So mixing of this lemon juice into the water, right? This is a natural phenomenon or not? Obviously, this is a natural phenomenon. ये एक natural phenomenon है. But do we study this in physics? Your answer is no. Another point. There is this we study in. Where do we study this particular thing? We study in chemistry. We study in chemistry. Now, I would give you another example. Let's talk about, I take, मैंने यहाँ पे कोई गुठली रख दिया, मैंगो की गुठली रख दी, आम की गुठली रख दी इसमें, and this is buried inside. This is buried means आपने जमीन के अंदर उसको काट दिया, और एक दो दिन आपने पानी डालने के बाद, आफ्टर इसको पानी से सींचने के बाद, दो चार दिन बाद आपको इसके ऊपर कुछ लीव्स दिखाई दे जाती है, कुछ इस तरीके की लीव्स आ जाती है. अब ये जो मैंगो की गुठली को जमीन में डालना, फिर उसके ऊपर पानी आपने डाला, पानी को डालने के बाद इसके ऊपर लीव्स निकल के आ गई, तो दिस इज अ नेचुरल फेनोमेनन और नॉट? I'm asking, is this a natural phenomenon or not? You say yes, it is a natural phenomenon. And if it is a natural phenomenon, then do we study this in physics? Your answer is no, it's not. We don't study in physics. And where do we study it? We study in biology. तो अगर इसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये भी नेचुरल फिनोमेनन है, ये भी नेचुरल फिनोमेनन, एंड यू आर सेइंग स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन इज फिजिक्स, तो थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता? मेरे को तो लगता है.
then what we should do? What should we do actually? Then I I tell my students that there we must develop some better way of defining this subject. So what do I say my students how we should define this particular subject? So my concept for you is like okay. So let's go for a redefining the subject. तो मैंने बोला फिजिक्स होना क्या चाहिए? Right. It is branch of this branch of science this branch of science which deals with which deals with branch of science which deals with physical properties physical properties of substances physical properties this branch of science which deals with physical properties of substances and and phenomenon and phenomenon related and phenomenon related that's all मतलब physical property से related phenomenon जो है उसको हम physics में पढ़ते हैं. It is branch of science which deals with physical properties of substances. So my point over here is that look जब हम physics की बात करते हैं then what we are talking about substances first. और substances के physical properties को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जो फिनोमेनन है मतलब उसमें फिजिकल क्वांटिटी भी आएगा वो सब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. आप कोशिश करिए कि कोई और भी इससे बेहतर डेफिनेशन निकाल सके बट दिस इज आई बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी बेटर डेफिनेशन फॉर फिजिक्स. नाउ in a similar way, you can define this chemistry subject also. It is branch of science which deals with chemical properties of substances and phenomena. And in a similar sense, you can define that it is branch of science which deals with living, living animals and living plants, and that is what called biology, right? So अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स के डेफिनेशंस की बात की. नाउ द पॉइंट इज कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके बारे में और सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या चीज़ है. तो मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा और आगे ले चलूंगा. यहाँ सी अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं इफ वी टॉक अबाउट अ सब्सटेंस लेट्स सी हियर तो सब्सटेंस के पास when you talk about substance means what you are talking about. You are talking about a matter thing. You are talking about thing. What you are talking about matter. इसकी बात करें मैटर की बात करें सब्सटेंस थिंग मैटर दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो एक सब्सटेंस के पास वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं. वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी देन केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ओके देन यू नो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब लाइफ से रिलेटेड बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होएगी. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लाइक लिविंग है इन केस ऑफ लिविंग इन केस ऑफ लिविंग इन केस ऑफ लिविंग राइट लिविंग. अब अगर उसकी और भी सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज होएगी
हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज होएगी, जियोग्राफिकल होएगी, जियोग्राफिकल प्रॉपर्टीज होएगी, इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज होएगी, इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज होएगी, इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज। माय पॉइंट इज, यू सी, हर पार्ट को पढ़ने के लिए, राइट, हम लोग लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमने फिजिक्स पढ़ा, राइट, दिस इज केमिस्ट्री पढ़ी हमने, राइट, दिस इज बायोलॉजी पढ़ा हमने, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा हमने, दिस इज हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट, जियोग्राफी पढ़ते हैं हम लोग इस तरीके से, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एंड लाइक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, राइट। सो दिस इज सब्सटेंस की बात करें तो दिस इज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। So means if you talk about a substance and if you see the substance from various aspect, like you are watching physical property or chemical or biological or historical and geographical or what actually you are watching. So accordingly, matlab, your physics will prepare you to study physical properties of substances. Chemistry will make you prepare to study this. So means every subject what we study in class 10th, 11th, 12th, that all make us prepare to study a substance that could be living or non-living in a different way, right? So physics has a job to do like this. Now I would like to tell you that the definition what we thought this study of nature and natural phenomena. This definition is very widely given in various books, right? But to my senses, this is not the definition of physics. This should be considered as this should be considered as definition of, right. This should be considered as definition of science. What? This should be natural science. Natural natural science का definition होना चाहिए. It should be the definition of natural science. Guys, you understand my point. So, I take you back now. So, okay, हम लोगों ने अभी तक फिजिक्स के डेफिनेशन पे बात की, कि what should be the definition of physics, what should be the definition of physics, and then we talked about कि okay, physical properties substances की जो होंगी उसको हम लोग physics कहेंगे. This is what we come to know that. So, what are the type of physical properties we know? तो मैं अब आपको जरा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ. आई विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो हियर आई एम राइटिंग classification of classification of, of physical properties, physical properties, classification of physical properties. Dear friends, physical properties को 8 classes में divide किया गया. How many? I said 8 classes. Classification 8 classes, जिसमें से 4 we study in class 11th and 4 we study in class 12th. Right, 8 classes. So what are those physical properties? ये कौन कौन से physical properties हैं जो 8 की बात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा उसकी तरफ लेके चलता हूँ, ध्यान देगा. So see, the first one is mechanical properties. What is it? Sorry, mechanical properties. This is mechanical properties. And the second one is general properties. What is it? General properties. And the third one is thermal properties. What is it? Thermal properties. And I should tell you, right, thermal properties. And this, right, thermal properties. And this fourth one is, acoustic properties.
sorry, acoustic properties. So mechanical, general, thermal, this is four. And fifth one is electrical properties, electrical properties. And then the sixth one is, right, magnetic properties, magnetic properties. And then seventh one is like optical properties की बात करें. And this last one is, right, atomic, nuclear, means inside this, or you can say molecular. These are the properties. I should tell you that कि जरा गौर करें मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की. I am saying you that कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो क्लासिफिकेशन है वो 8 पार्ट में, राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, लाइक किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो 8 टाइप्स है. आपके सामने कोई भी सब्सटेंस होएगा उसके पास आठों तरीके की प्रॉपर्टीज, 8 नजरिए से हम उसके प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. यू कैन टेक एनी एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स सपोज अभी मेरे सामने, राइट, आई हैव plastic I have a plastic pen, right? And that pen is being put on the table. So what is its mechanical property? Because that pen is placed on the table, it's not moving. So I say it's mechanical property. This is called mechanical property. So mechanical properties में हम पढ़ते क्या हैं? This deals with rest and motion. इसकी बात करते हैं हम उसको rest and motion कहते हैं. And general properties जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? That talks about solid, by liquid, gases, इसकी बात करते हैं. और थर्मल प्रॉपर्टीज में हम क्या बात करते हैं? हीट की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं. दीज आर थिंग्स वी स्टडी इन थर्मल प्रॉपर्टीज, राइट. एंड एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, सो दैट टॉक्स अबाउट दैट एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें, दैट टॉक्स समहाउ, राइट, दिस टॉक्स अबाउट साउंड्स की बात करने लगते हैं. ठीक उसी तरीके से यहाँ की बात करें तो हम यहाँ पे चार्ज और करंट की बात करते हैं, चार्ज एंड करंट की बात करने लगते हैं, राइट. यहाँ पे मैग्नेट से रिलेटेड बात करने लगते हैं, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट रिलेटेड बात होगी. यहाँ लाइट से रिलेटेड बात करने लगते हैं. और इस जगह पे आई से दिस इज लाइट से रिलेटेड बात करने लगते हैं. और अगर हम यहाँ चले जाएं, राइट, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर में, तो हम उस पार्टिकल के मतलब एटम, मॉलिक्यूल के अंदर की जो बात है इसको हम लोग मीन्स एटॉमिक और न्यूक्लियर, ये अपने आप में एटॉमिक और न्यूक्लियर बिहेवियर की बात हो रही है. एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बिहेवियर की बात करते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बिहेवियर की बात करते हैं. सो इन सब को, ये जो हमारे पास 8 तरीके की प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरल होती हैं, थर्मल होती हैं, कॉस्टिक होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक, न्यूक्लियर है, ये प्रॉपर्टीज. दिस आर द 8 क्लासिफिकेशन एक्चुअली. I should tell you, my dear friend, these 4 properties we study in class 11th and this 4 property we study in class 12th. इनको हम 11वीं में पढ़ते हैं और इनको हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं. एंड आई शुड टेल यू कि जो हर एक प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, लाइक ये जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, और ये जनरल प्रॉपर्टीज है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज है, ये कॉस्टिक प्रॉपर्टीज, इन सब को पढ़ने के लिए हमारे पास फिजिक्स में अलग अलग ब्रांच है. तो मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ और आपको ये महसूस कराता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. मेरे ख्याल से आप सब लोगों को यहाँ पे बात समझ में आ रही. हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि सपोज आई हैव अ प्लास्टिक पेन इन माय हैंड एंड दैट पेन, द प्लास्टिक पेन दैट इज kept on table. So definitely that pen is at rest. And if I take that pen in my hand and start writing, then I say that this pen is in motion. Now that plastic pen is like uska jo upper body hai, that is made of solid, and that plastic pen have some uh,
some refill inside, and that refill has some semi-solid kind of liquid. Or if it is a ink pen, then हम कहते हैं कि चलो भाई इसके अंदर liquid है, right? Are you getting it now? So this is like general properties, means वो plastic pen solid का बना हुआ है, ये उसकी general properties है. Thermal properties, like अगर हम उसको heat supply करते हैं, right, तो वो बहुत जल्दी heat को एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करता, वो हीट को खुद लेने लगता है. एंड इट कैन, due to the heat, it can go into the melting stage and something like that. And acoustic properties, like every substance has its own acoustic. जैसे आप आपके हाथ में you take any substance, let's take a, you have a stick, and that you take that stick and you start using that stick on different substances, you will have a different sound in front, the sound you will start hearing. So different substance has a different acoustic. So that's what, like me, you, anybody is talking, and they all have their own specific sound. So that is the acoustic properties we are trying to talk about this, right? Similarly, that plastic pen की बात करें तो if I rub with my hair, right, it may acquire charge. And अगर मैं उस प्लास्टिक के थ्रू करंट पास करना चाहूँ तो करंट पास नहीं होगा. That plastic material is not magnetic, उसको मैग्नेट से आप अट्रैक्ट करना चाहोगे तो नहीं होएगा, तो उसके पास नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब मैग्नेटिक नहीं है, right? And optical property means light. If it is it's a thick plastic, and it is, अगर उसके ऊपर उसके थ्रू लाइट एंटर नहीं कर सकती, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, बट लाइट उसके ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट हो सकती है if it is shiny and something like that. So that's what we are trying to talk about, optical properties, and it is made of atom, molecules and layers. So that's what the whole point is. So idea is कि हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो उस सब्सटेंस के पास ये भी होगा, ये प्रॉपर्टी भी होगा, इस नज़रिए से भी देख सकते हैं उसको, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं. इन सारों, मतलब हर तरीके की प्रॉपर्टीज उसमें पाई जा सकती है, उसको हर तरीके से उसको देखा जा सकता है. दीज आर द वेज टू लुक एट दिस. नाउ आई वाज सेइंग दैट कि अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो लुक एट दिस, व्हाट आई एम सेइंग दिस. अब अगर मैं, जो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज निकल के आई, लाइक अब ज़रा देखें, ये 11th क्लास की फिजिक्स की बात करें तो आपने बोला कि ओके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स में जो ब्रांच का नाम दिया गया है, फिजिक्स के इस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स. व्हाट वी कॉल इट? मैकेनिक्स. वेरी गुड. नाउ जो जनरल प्रॉपर्टीज हमने, जनरल प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास, इसको पढ़ने के लिए फिजिक्स का जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. और वी कॉल इट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं इसको, इस नाम से जानते हैं. नाउ अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें, थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसको पढ़ने के लिए, थर्मल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए जो हमारे पास ब्रांच है उसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. हीट एंड थर्मो thermodynamics. This is what our topic is, heat and thermodynamics, right? Okay. ठीक उसी तरीके से अभी एक छूटा हुआ है, उसको थोड़ा पीछे देखते हैं. अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा, इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है. यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है, ठीक है, डायनेमिक्स पढ़ा जाता है. फिर मैग्नेट को पढ़ने के लिए, लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं. मैग्नेटिज्म, इस ब्रांच का नाम है मैग्नेटिज्म. नाउ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग लाइट की बात करते हैं. वी स्टडी अबाउट लाइट, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइक सिमिलरली अगर हम और बात करें, लाइक यहाँ पे एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम लोग, एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं. नाउ यहाँ पे लाइक ये जो एटॉमिक न्यूक्लियर दिस है, इसको, इसके लिए हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं. सो व्हाट यू कम टू नो हियर, कि आपके पास 11th क्लास में 4 ब्रांचेज, 1 2 right 3 and 4, इसके लिए 4 ब्रांचेज हो गए. एंड दिस 5th 6th
6th and 7th and 8th इनके लिए like model. This is the branches we have. Now, just to make you, this is first book of NCERT, and these three we take it as a book 2 of NCERT. क्लास 11th में आपको फिजिक्स की 2 बुक मिलेगी, तो दिस इज बुक 1 एंड दिस इज बुक 2, यानी कि फर्स्ट बुक में आपको मैकेनिक्स पढ़ना है और सेकंड बुक में। अब हम अगर आगे आपको लेके चले, लाइक इफ वी गो अहेड फर्दर, राइट, मेरे ख्याल से आपको बहुत जनरल बातें अभी समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। सो नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो 11th क्लास में जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो मैकेनिक्स है, जो हमारा फर्स्ट बुक है, सो इस फर्स्ट बुक का सिलेबस जो हमारा है बुक 1, ये बुक 1 में है क्या चीज़, व्हाट इज दिस बुक 1 डील्स विद, यानी कि जो एनसीईआरटी का बुक 1, तो इसमें राइट बहुत एक द फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है आपको, द फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है, राइट, दिस इज योर यूनिट 1, एंड फिर यूनिट 2 पढ़ना है, दैट इज यूनिट डायमेंशन, एरर, आपको यूनिट डायमेंशन, एरर एंड एरर इन मेजरमेंट पढ़ना है, एरर इन मेजरमेंट पढ़ना है, right? This is what you have to study in book 1, and with this we have to study this particular part, that is called mechanics. So mechanics, so this book 1, this unit 1 है, ये unit 2 है, और ये जो 3 पोर्शन देख रहे हैं, ये थर्ड पार्ट जो है, इसके अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और वो चैप्टर्स क्या क्या है मैं आपको थोड़ा उसका ब्रीफिंग कर रहा हूँ, राइट। तो अब ये देखिए मैकेनिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो मैं आपको ये यूनिट 1 और यूनिट 2 बता दिया। अब ये जो मैकेनिक्स है, मैं चाहूँगा ज़रा आप इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखिए, और फिर हम आपको लेके चलते हैं, लाइक जो मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो जो बुक 1 में आपको ये पढ़ना है, दैट इज यूनिट 1 और यूनिट 2, और जो मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो मैकेनिक्स के अंदर पहले ये बेसिक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। तो देखो मैकेनिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या होता है, एक चीज़ है स्टैटिक्स, राइट, एंड दिस इज काइनेटिक्स। स्टैटिक्स यू नो आपको मैंने पहले ही बता दिया, मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेस्ट एंड मोशन पढ़ते हैं, रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन की बात। तो दिस इज स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स में स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब ये स्टैटिक्स क्या चीज़ है भाई, व्हाट इज दिस स्टैटिक्स एंड दिस व्हाट इज दिस काइनेटिक्स। तो स्टैटिक्स का और ये जो काइनेटिक्स है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स and another part is called काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये आपके काइनेटिक्स में। और स्टैटिक्स, तो दिस इज स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई सब्सटेंस रेस्ट पे है, उसके बारे में जो आपको पढ़ना है वो स्टैटिक्स पढ़ना है। बेटा ये ना हमारे कोर्स में ज़्यादा नहीं है, नॉट इन कोर्स, हमारे कोर्स में इसका डिटेल नहीं पढ़ना, ये हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और काइनेटिक्स का क्या मतलब है, आपको स्टडी ऑफ मोशन करना, स्टडी ऑफ मोशन पढ़ना। तो अब यह सवाल ये है कि सर जो मोशन पढ़ना है तो इसमें 2 ब्रांच कैसे है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यू सी व्हाट वी आर गोइंग टू, मैं इन दोनों को भी आपको बता देना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है। सो लुक एट दिस, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, काइनेमेटिक्स का मतलब है कि जब हम मोशन को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया जाए आप अपने साइकिल पे बैठे
और अपने घर से निकले और अपने मामा के घर चले गए बाय मेकिंग इट पैडलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपका ऑलवेज इस बात पे ध्यान दिया कि ओके मेरी साइकिल मोशन में है और मोशन में भाई अभी उसकी क्या स्पीड है। अच्छा, कभी उसका स्पीड आपने बढ़ा दिया, कभी उसका स्पीड कंट्रोल कर लिया, कभी लेफ्ट मुड़ गए, कभी राइट मुड़ गए, मीन्स यू आर जस्ट बॉदर्ड। एंड कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मतलब आप मोशन के दौरान कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिस पे आपका फोकस होता है। मतलब क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, क्या डिस्प्लेसमेंट किया ट्रेवल बॉडी ने, क्या उसकी स्पीड है, क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या उसका एक्सेलरेशन है। मीन्स मीन्स आई मीन टू से दैट व्हेन बॉडी इज इन मोशन you are just focusing on those parameters, but you are not at all knowing what cause what is causing the motion. So kinematics का मतलब हम कहते हैं study of motion, study of motion, study of motion without without knowing without knowing its cause. That is study of motion. Without study of motion without knowing its cause. And अब तो ठीक है, ये तो काइनेमेटिक्स हो गया। और फिर डायनेमिक्स क्या चीज़ है? डायनेमिक्स की बात करें, डायनेमिक्स की बात करें, दिस डायनेमिक्स इज लाइक study of motion, study of motion with its cause. That is called dynamics. तो मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया कि ठीक है, जरा मैं अब अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा रिकैप करा लें फटाफट जल्दी से। तो सी हाउ वी आर, सो सी आई सेड दैट कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स का के बारे में एक डेफिनेशन है, दैट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मोस्टली पीपल यही समझते हैं, राइट। बट मैंने आपको बता दिया मेरे ओपिनियन में कि दिस इज दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इट्स जस्ट नॉट फिजिक्स। सो मैंने इसको एग्जाम्पल से समझा भी दिया कि देखो नेचुरल फिनोमेनन तो यहाँ भी दिख रहा है कि भाई देखो वाटर में मैंने लेमन जूस मिलाया, फिर वो सॉल्यूशन बन गया। बट वी ऑल टॉक अबाउट केमिस्ट्री, एंड यहाँ पे मैंने एक मैंगो की गुठली को जमीन में गाड़ करके उससे आम के छोटे से एक प्लांट निकाल दिया, दैट वी स्टडी इन बायोलॉजी। सो दिस इज बायोलॉजी, दिस इज केमिस्ट्री। तो मीन्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन में तो ये भी आता है, जो इसका मतलब कि साइंस का डेफिनेशन ये होना चाहिए, फिजिक्स का नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपने नज़रिए से फिजिक्स का डेफिनेशन आपको यहाँ पे बता दिया कि लुक, फिजिक्स का मतलब इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, it is yes, it is branch of science which deals with physical properties of substances and phenomenon related. This is our physics basically. And फिर तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो सब्सटेंस क्या चीज़ होता है भाई? भाई एनीथिंग विच यू सी ऑल अराउंड दैट इज ऑल सब्सटेंस, चाहे वो कोई थिंग हो या मैटर हो, यही सब्सटेंस है। और उन सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, किसी भी सब्सटेंस के पास हर तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। वो फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, बायोलॉजिकल भी होती है, हिस्टोरिकल भी होती है, जोग्राफिकल भी होती है। आई मीन टू से फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, बायोलॉजिकल भी होती है, हिस्टोरिकल भी होती है, जोग्राफिकल भी होती है, इकोनॉमिकल भी होती है, फिलोसफिकल भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है। ऐसे पता नहीं कितनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। मीन्स आपको जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना बेटा, उन सारे सब्जेक्ट से हम उस सब्जेक्ट से हम एक एटीट्यूड सीखते हैं, हम एक तरीका सीखते हैं किसी सब्सटेंस को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको देखने का, उसको परखने का, उसको समझने का एक तरीका डेवलप करते हैं। तो हम फिजिक्स की बात करें तो हम सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड फिनोमेनन को पढ़ेंगे। यानी कि फिजिक्स विल प्रिपेयर अस to look at any substance living or non-living, and in a way that we are focusing on its physical properties and phenomena related to that. That's what the job of physics is. And then I make you understand that okay, physical properties का हम लोग further classifications करते हैं। तो जो physical properties की जो classification है वो कुछ इस तरीके से है, that is 8 classes में हम लोग उसको रखें। That is mechanical properties, general properties, thermal properties, and acoustic properties, electrical properties, magnetic properties, optical properties, atomic and nuclear, and this.
मैकेनिकल में रेस्ट मोशन पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस की बात जब करते हैं तो हम जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सब्सटेंस का, थर्मल प्रॉपर्टीज में उसका टेम्परेचर, हीट, उससे रिलेटेड फिनोमेनन पढ़ते हैं। एकॉस्टिक प्रॉपर्टी में साउंड से रिलेटेड हम फिनोमेनन पढ़ते हैं। चार्ज एंड करंट की जब बात करने लगते हैं देन वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। एंड फिर मैंने आपको बताया कि देखो क्लास 11th एंड 12th में हम लोगों ने ये 11th क्लास में ये 1 2 3 4 पार्ट पढ़ना है, और क्लास 12th में आपको बेटा ये 5th 6th 7th 8 ये 8 प्रॉपर्टीज आपको क्लास ये जो बाकी जा रहे हैं ये क्लास 12th में पढ़नी है। तो फर्स्ट में हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज इसको पढ़ने के लिए फिजिक्स का एक ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स। इसको पढ़ने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, ये कॉस्टिक प्रॉपर्टीज है, ये मैकेनिक्स कहलाता है। तो हमारे को 11th क्लास में एनसीईआरटी दो किताब देती है, वन इज कॉल्ड द फर्स्ट बुक डील्स विद मैकेनिक्स एंड द सेकंड बुक डील्स विद दिस ऑल थ्री, राइट। सो एंड दिस वी हैव टू डील विद इन डील इन क्लास 12th। तो क्लास 12th में भी आप जाएंगे तो ये दोनों मिल करके लाइक फिफ्थ एंड सिक्स प्रॉपर्टी, फिफ्थ एंड सिक्स जो है आपको ये दोनों बुक वन बनेगी, और ये दोनों मिल करके सेवेंथ और एट बुक टू बनेगा। दिस इज हाउ गोइंग टू हैपन इन क्लास 12th में। सो वहाँ भी दो बुक मिलेंगे आपको। नाउ हम वी आर फोकस ऑन कि ठीक है, सॉरी, वी आर फोकस ऑन कि भाई क्लास 11th में जो हमें फर्स्ट बुक मिलेगी वो क्या चीज़ है, व्हाट इट कंटेंस। तो मैंने उसमें बताया आपको कि देखो सबसे बड़ी बात ये समझो कि उसमें फर्स्ट है द फिजिकल वर्ल्ड दैट इज यूनिट वन, एंड द यूनिट डायमेंशन एरर एंड एरर इन मेजरमेंट, दिस वी स्टडी इस बुक के अंदर। यूनिट टू है हमारा। एंड नाउ थर्ड इज मैकेनिक्स, जिसमें हम रेस्ट एंड मोशंस की बात करते हैं। तो पहले मैकेनिक्स जो रेस्ट एंड मोशन होता है उसका थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लिया हमने। हमने बोला देखो ये दो पार्ट होता है, स्टेटिक्स एंड काइनेटिक्स। और स्टेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, किसका, सब्सटेंसेस का। लेकिन हमें इसका डिटेल पढ़ना नहीं है, नॉट इन कोर्स। और फिर काइनेटिक्स में हम काइनेटिक्स की बात करते हैं जो स्टडी ऑफ मोशन की बात करता है, एंड दैट टेल्स टॉक्स अबाउट that talks about kinematics and dynamics। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स की बात करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन होता है। काइनेटिक्स का मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं। और फिर हमने काइनेमेटिक्स एंड सॉरी काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स को काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स को डिफाइन कर दिया। दैट्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। नाउ ये दो ये ये थोड़े से ये हम लोगों को मिटा देना है, ये किसी काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। दिस इज और ये भी गलती से हो गया, राइट। सो नाउ काइनेमेटिक्स को डिफाइन कर दिया और डायनामिक्स को डिफाइन किया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो हमारा मैकेनिक्स है इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, व्हाट आर द चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो आई टेक यू टू दैट पार्ट नाउ। तो मैकेनिक्स जिसको हम कह रहे हैं, मैकेनिक्स हम जिसको कहते हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सो दिस इज फर्स्ट वन दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपने इसके बारे में इसका बहुत ही बेसिक चीज़ आपने क्लास 9th में पढ़ा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज आवर यूनिट 3, राइट। एंड फिर आपको पढ़ाया जाएगा मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। तो जो मोशन इन प्लेन है हमारा, दिस इज यूनिट 4, यूनिट 4, राइट। ये दोनों जो हैं ये हैं काइनेमेटिक्स, दिस इज काइनेमेटिक्स, इसी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, राइट। ये काइनेमेटिक्स है। दिस इज काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, ये काइनेमेटिक्स है, यूनिट 3 और यूनिट 4, राइट। ये आपको एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर का रिफॉर्म। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोशन इन प्लेन में हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है बच्चे। क्या क्या पढ़ना होता है ज़रा देखो, मैं आपको इसका भी डिटेल थोड़ा बता दूँ। दिस इज कॉल्ड वेक्टर, राइट। फिर यहाँ पे क्या चीज़ होती है जब हम अलग अलग पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको बताएंगे। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दिस इज सर्कुलर, सर्कुलर मोशन,
राइट, दिस इज सर्कुलर मोशन एंड दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन इन प्लेन के अंदर हमें पढ़ना होता है। दिस इज राइट। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये तो मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स हो गया। फिर आपको क्या क्या पढ़ना है, दिस इज थर्ड, दैट इज laws of laws of motion, laws of motion and friction, laws of motion and friction, ये आपको पढ़ना। दिस इज यूनिट 5। एंड फिर आपको पढ़ना है दिस इज यूनिट like this another unit that is called work power, work power, energy, work power, energy and collision, ये आपको पढ़ना। दिस इज यूनिट 6। एंड देन आपको this is what you have to study, this uh, rotational motion, rotational motion, rotational motion. This is your unit 7 and this 5 and this is right. What this is gravitation. 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 This is unit 8. So ये आपको मतलब जो मैकेनिक्स जिसको हम कहते हैं उसमें हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैंने आपको एक तरीके से ये बता दिया जो कि लोग एक तो यूनिट 1 द फिजिकल वर्ल्ड हो गया, बुक 1 के अंदर क्या क्या है, द फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन एरर, ये यूनिट 2 हो गया। और फिर जो आप मैकेनिक्स कहते हैं, जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, उस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टैटिक्स काइनेटिक्स, राइट। ये तो पढ़ना ही नहीं है, काइनेटिक्स एज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और ये जो दो चैप्टर, काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, एंड डायनेमिक्स में मोशन को हम स्टडी करते हैं इट्स कॉज। एंड आई शुड टेल यू लाइक जो यहाँ देख रहे हैं आप, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये बेटा काइनेमेटिक्स है। और जो मोशन इन प्लेन है, जो सॉरी जो जो मोशन इन जो मोशन इन जो मोशन इन प्लेन है उसमें हमें वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन ये पढ़ना होता है डिटेल में। और ये जो आप चार चीज देख रहे हो, ये दिस एंड दिस इज कॉल्ड, ये हम डायनेमिक्स है, दिस इज डायनेमिक्स, राइट। तो एक तरीके से मैंने आपको जो फर्स्ट बुक होता है उसका हमने डिटेल बता दिया। अब हमारे को ये आज आपको मैंने फर्स्ट बुक का आपको डिटेल बताया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक एक चैप्टर करके स्टार्ट करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच एंड you all are requested to subscribe this channel, and I hope you like the lecture, so give us a like also. Thank you very much. Agla lecture soon will be recorded and based on YouTube. Thank you very much. Uploaded on YouTube. Thank you very much. Please subscribe this channel and make your friends aware about this particular channel also, so that they can also come and see this channel and they can be getting advantage from this. Thank you very much. God bless you all, and I hope you all will be studying very nicely. Thank you. Thank you, my dear.